ये वॉइस क्लियर हो गई? शैल वी बिगिन? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, today's topic is bearing. ठीक है, as you all know that we'll be studying bearings today. Bearings, it is your second last chapter and it can be a bit confusing. थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रीवियस तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट एंगल्स. The good thing is that it's all about angles and you guys know how to calculate angles, how to measure angles. Before starting this topic, I shared a video with you guys about the transversal concept. When a parallel line is cut by transversals, certain angles are formed. The first one is the corresponding angles. The corresponding angles are the angles which are on the same position of the line. The angles which are on the same position are called the corresponding angles. The angles which are alternate and inside the lines, one on the right and one on the left, these are called alternate angles. If two lines are parallel and they are cut by a transversal, corresponding angles are formed, and if two lines are parallel, they are equal, alternate angles are formed. अगर lines parallel है तो alternate angles भी equal होते हैं. Vertically opposite angles are also formed, they are also equal. But what about this interior consecutive interior angles? We discussed that these two are called consecutive interior angles and their sum is equals to 180 degree, and their sum is equals to 180 degree means they are supplementary angles. They are not equal, they are supplementary angles, means the sum of these two angles is equals to 180 degree. So these type of four angles, ये इंटरेस्टेड इसलिए थे क्योंकि we'll be, in order to find the bearing we need these concepts. बेयरिंग निकालने के लिए हमें जो है ये वाले कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे, हमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी. इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर की थी सो दैट एवरीवन कैन हैव थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर consecutive interior angles. So these are the four angles which are formed when two parallel lines are cut by a transversal. We will be needing these concepts in order to calculate the bearing. तो ये थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा रिवाइज कराना था क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस भी शेयर की थी. तो नाउ अब हम ऑफिशियली बिगिन करते हैं विद द बेयरिंग. बेयरिंग्स आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रू बेयरिंग्स. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स. ये भी बता दूं, एक ट्रू बेयरिंग्स होती हैं और एक कन्वेंशनल बेयरिंग्स होती हैं. सो वी विल बी स्टडीइंग ओनली टू बेयरिंग्स. हम लोग सिर्फ ट्रू बेयरिंग स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, what are these? True bearings or bearings are special kinds of angles. Special kinds of angles, or it is basically an angular distance between 2 points. So I hope you can see this definition. आपको ये definition नजर आ रही होगी at the top. These basically are angular distance. Angular distance means distance between 2 points in the form of an angle. For example, if you can see a diagram over here, this is my point A and this is my point B. This is the angular distance between these 2 points. So this is my bearing. Angular distance means the distance in angles. ठीक है, angular distance means the distance in angles. इसको और देखेंगे एग्जांपल्स में आगे. अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि bearings are special kinds of angles. Bearings are special kinds of angles, or there is a angular distance between 2 points. Since they are special kinds of angles, so there are 3 rules. इनके लिए 3 रूल्स है. ठीक है, इनके लिए 3 रूल्स है और वो 3 रूल्स क्या है कि दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉट. ये हमेशा नॉट से मेजर होती है, ये हमेशा नॉट से मेजर होती है. इसका मतलब है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देयर आर 3 रूल्स फॉर बेयरिंग. सिंस बेयरिंग आर स्पेशल काइंड्स ऑफ एंगल्स, सो देयर आर 3 रूल्स. द फर्स्ट वन इज दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉट. दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉट मींस यू हैव टू ड्रॉ अ नॉट ऑन वन पॉइंट. इसका मतलब ये हुआ कि यू विल बी गिवन 2 पॉइंट्स. आपके पास हमेशा 2 पॉइंट्स होंगे और आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा. ठीक है, एंड सिंस बेयरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉट, सो यू हैव टू ड्रॉ अ नॉट ऑन एनी वन पॉइंट. किस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वो मैं बताऊंगा. अभी सिर्फ इतना याद रखो, देयर आर 3 रूल्स. द फर्स्ट वन इज यू हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम नॉट. इसका मतलब है कि यू हैव टू मेक अ नॉट ऑन एनी वन पॉइंट. किस पे हमें किस पे ड्रॉ करना पड़ेगा वो मैं अभी बताऊंगा. द सेकंड रूल इज they are always measured in clockwise direction. जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है हमेशा उसी डायरेक्शन में इसको
मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे. वी विल ऑलवेज मेजर दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने ये एरो बनाया हुआ है, यू कैन सी दिस एरो, हमेशा इस एरो की उसमें जाएंगे. एंड द थर्ड वन इज दैट दे आर ऑलवेज रिटन इन 3 figures. फॉर एग्जाम्पल, योर बेरिंग इज कमिंग आउट टू बी 30 degrees, so you will write 030 degrees. For example, if your bearing is coming out to be 9 degrees, so you will be writing 009 degrees. You will not be writing 9 degrees. अगर आप 9 degrees लिखोगे तो वो एंगल हो जाएगा. That is the difference between a bearing and an angle. ठीक है, bearing is always in 3 degrees. हमेशा इस तरह लिखेंगे 009. अगर 3 degrees में डायरेक्ट बेरिंग है तो हमें फिर 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है. वी कैन राइट 120 डिग्री, जो भी हमारा एंगल आ रहा है, 240, 120, 110, जैसा भी आ रहा है. ठीक है, तो bearings are special kinds of angles, or we can define it as the distance between 2 points in the form of an angle. Angular distance between 2 points. There are 3 always measured from north. इसका मतलब है you have to draw a knot on any one point. किसी एक पॉइंट पे हमें knot draw करना पड़ेगा. The second point is that they are always measured in clockwise direction. And the third thing is that they are always written in 3 degrees. ये हमेशा 3 डिग्रीज की फॉर्म में लिखी जाएंगी. इतनी चीज समझ में आती है? इज दैट क्लियर? शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़े. ये चीज समझ में आई है, 3 रूल समझ में आ गए. दे आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉट, इसका मतलब एक पॉइंट पे नॉट बनाना पड़ेगा, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड द थर्ड थिंग इज दैट दे आर ऑलवेज रिटन इन 3D. ठीक है, 3 डिजिट्स में लिखना पड़ेगा. चलो अब थोड़ा सा 3 फिगर्स, मतलब 3 फिगर्स का मतलब 3 डिजिट्स. 3 digits means if your bearing is coming out to be 9, so you will write 009 degrees. अब how to choose knot? The second question is that, यही मैंने यहाँ लिखा है, देखो यही फ्लो है हमारा, कि मैंने आपको बोला कि you have to measure everything from knot. Since it is bearing, so you have to measure it from knot. तो अब the next question is that where to draw knot? On which point we should draw knot? Sir, 2 points हैं, किस point पे knot draw करें, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि you have to read the question very carefully and you have to focus on the word from. You have to focus on the word from. ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि we have to measure bearing from knot. इसका मतलब है कि we have to draw a knot on any one point. और इसका मतलब ये है कि सर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि where to draw knot, किस पॉइंट पे knot draw करेंगे. तो you have to read the question very carefully and you have to focus on the word from. जहां from आ जाए, फ्रॉम के बाद वाला जो भी डिजिट होगा हमेशा नॉट उसी पे ड्रॉ होगा. ठीक है, जहां भी फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम के बाद वाला जो भी अल्फाबेट लिखा होगा, यू विल बी ड्रॉइंग द नॉट ऑन दैट डिजिट. फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज शेयर करता हूं. ठीक है, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन. अब स्क्रीन पे क्लियर है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू मार्क बेयरिंग्स. ठीक है, मेरे इन ऑर्डर टू फाइंड द बेयरिंग वी हैव टू फर्स्ट मार्क द बेयरिंग. पहले हम बेयरिंग को मार्क करते हैं, फिर फाइंड आउट करते हैं. So first thing is that we have to find the bearing of point A from B. Focus on the word from. From means, देखो अभी तुमने क्वेश्चन पढ़ा, तुमने क्वेश्चन में देखा A और B पॉइंट आ रहा है. ठीक है, तुमने क्या किया, 2 पॉइंट ड्रॉ कर दिए. फर्स्ट पॉइंट इज A एंड सेकंड पॉइंट इज B. तुमने 2 डॉट्स लगा दिए और यू जॉइन देम विद अ लाइन. एक लाइन से उनको ज्वाइन कर दिया. अब यू गो बैक टू द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग बेयरिंग ऑफ A from B. You have to focus on the word from, and from के बाद कौन सा लेटर है? B. इसका मतलब है knot will always be drawn on B. From के बाद जो भी डिजिट लिखा हुआ होगा, जो भी अल्फाबेट लिखा होगा, the knot should be drawn on that. ठीक है, अब मैंने क्या किया, from B पे knot ड्रॉ कर दिया. और since I know that bearing is a clockwise, हमेशा एंगल clockwise में जाना है, तो इसीलिए मैं यहाँ knot पे खड़ा हुआ. थोड़ा सा आगे जाके यहाँ कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, and then you have to start making an angle like this. You have to move in clockwise direction. हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और वहां तक जाएंगे जब तक दूसरा पॉइंट, वो जो लाइन ड्रॉ की है ना, जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, वहां तक ना पहुंच जाए. सो दिस इज माय बेयरिंग, दिस इज माय बेयरिंग. इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे. लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हाउ टू मार्क द बेयरिंग. बेयरिंग कैसे मार्क करनी है. तो दिस इज बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम B. फ्रॉम मींस we have to focus on the word from and we have to draw the knot after the letter from. From के बाद कौन सा अल्फाबेट है? B. तो हम हमेशा B पे नॉट ड्रॉ करेंगे. इसी तरह इधर आ जाओ, बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम A. You have to look at the question carefully, find the word from. From को देखा और फिर ये देखा from. नहीं, हर बार वो नहीं होता रिफ्लेक्सिव एंगल. अब देखो यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन द वर्ड फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जो भी लेटर है उस पर नॉट ड्रॉ कर देंगे और फिर उस नॉट पे खड़े होंगे. थोड़ा आगे जाके कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव क्लॉकवाइज. हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए आएंगे
और वहां तक आएंगे जहां तक वो लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और ये एंगल, दिस इज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, दिस इज द एंगल। यहाँ जो भी आंसर आएगा 3 डिजिट्स में वो होगा बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, और यहाँ जो भी आंसर आएगा 3 डिजिट्स में दैट इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। सो फोकस ऑन द वर्ड फ्रॉम, फ्रॉम पे फोकस करो, फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट है, जो भी लेटर लिखा है, हमेशा नॉट उस पर ड्रॉ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो अब ये देखो, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। अगर मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम। अब जब देखो, bearing of B from A. So since this is from A, so the knot will be drawn on A, and after drawing the knot, we will choose a point on knot. कोई भी point choose करो knot पे, and then start moving clockwise direction. Clockwise direction में move करते हुए जाओ until you find the line. जो line दोनों points को join कर रही है ना, मतलब देखो हमें B की bearing चाहिए ना, तो ये line है जो कि AB को join कर रही है, तो हम यहाँ तक आएंगे। This is the bearing of B from A. अब दूसरी साइड पे आ जाओ, this is called the bearing of A from B. Why it is called? Because from B means we will draw the knot on B. B पे knot draw कर दिया, and then we will move a point, एक point select किया, and then we start, हमने clockwise direction में move करना start किया, and we go on until we found the line. वो line तक आ गए जहां तक A और B को join कर रही थी. So this is the bearing of B from A from B, and this is the bearing of B from A. So you have to focus on the word फ्रॉम, हमेशा फ्रॉम पे फोकस करना है। फ्रॉम के बाद जो भी हमारे पास अल्फाबेट है उस पे नॉट ड्रॉ करो, थोड़ा सा पॉइंट सेलेक्ट, एक नॉट पे पॉइंट सेलेक्ट करो, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इट, उससे मूव करना शुरू करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। वेट फॉर अ सेकंड, कुछ और भी है थोड़ा सा, चलो आई थिंक दिस विल हेल्प, ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इट्स एन इलस्ट्रेशन बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा ये विंडो खुलने दो। So three rules are there. First thing, we have to draw a knot. Knot किसी एक point पे draw होना है. We have to measure it on clockwise direction, और फिर clockwise direction के बाद we have to write the bearings in 3 digits. हमेशा bearing 3 digit में लिखनी है, ठीक है। So this is an illustration on GeoGebra. ये एक illustration है, ठीक है। I will surely this will help you. थोड़ा सा इसको देखते हैं। मोहम्मद आदिल, you are late आदिल, जल्दी आओ, सारा लेक्चर मिस कर दिया। चलो, so we are interested, I hope you can see the screen clear है, voice clear है, ठीक है। थोड़ा समझ में आ रहा है टॉपिक, ठीक है। चलो, the first step, bearing of A from B. We are interested in finding out the bearing of A from B. हम लोग bearing of A from B पे मैंने चेक कर दिया, ठीक है। ओके, so now the first step, this is my points. मैंने देखा मेरे पास दो पॉइंट्स है A and B, so I put 2 dots. मैंने 2 dots लगा दिए, A और B, ठीक है। अब the first step is that I have to draw a line from A to B. मैंने step 1 को टिक किया, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई from A to B, ठीक है। This is a line from A to B. Now since I have to find the bearing of A from B, मुझे ये बताओ नॉट कहां पे बनेगा, A पे बनेगा कि B पे बनेगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, बेरिंग नॉट कहां पे बनेगा? बी पे बनेगा, जबरदस्त, बी पे बनेगा, जबरदस्त। चलो अब मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, बन गया नॉट, नॉट बन गया, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला था, यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, आपकी मर्जी, आप इधर ले लो, आप इधर ले लो, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जाना, आपकी डायग्राम नीट नहीं होगी, ठीक है। जस्ट मूव ऑन द नॉट, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं इस पॉइंट पे। अब यू हैव टू स्टार्ट मूविंग इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में मूव करूं, कौन सी डायरेक्शन में मूव करूं, जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूं। I will go on and on and on and on until I reach this line, ठीक है। This is my required bearing, ऐसे ही है, this is my required bearing. I will start moving from here in clockwise direction और मूव करते हुए यहां तक आऊंगा, और this is my bearing. अब मुझे जल्दी से एक रफ वैल्यू बता दो कि what will be the value of this angle. रफ वैल्यू बता दो, रफ वैल्यू, सिर्फ रफ वैल्यू बता दो देखने के लिए। Sir, more than 180 and less than 360. जस्ट एन एग्जैक्ट, कोई भी एक वैल्यू बता दो, कोई भी एक वैल्यू अपनी मर्जी से बता दो, जस्ट टू लुक। देखो ये 180 है और ये तकरीबन कितना होगा, ये 50 और होगा, 180 प्लस 50 कितना होगा, जल्दी से 250, 150। अभी आंसर देख लेते हैं, आंसर देखते हैं। 160 और चलो आंसर देखें, 120,
120 कैसे होगा? इट विल बी मोर देन 180। देखो ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द वैल्यू? रफ सी वैल्यू बताओ। 240। चलो देखते हैं, चलो वैल्यू देखते हैं, चलो वैल्यू देखते हैं। आई एम चेकिंग ऑन द स्टेप नंबर 3। सो व्हाट इज माय बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी? 241 इज द राइट आंसर। 241 इज द राइट आंसर। मोर और लेस सारे आंसर सही थे। हमें इसी तरह का काम करना है। सिंस ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो डायरेक्ट बेयरिंग दे रहा है, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द बेयरिंग। चलो अब नेक्स्ट स्टेप एक एग्जांपल हो गई, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली देख रहे हैं, बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। चलो स्टेप 1 को टिक करता हूं। स्टेप 1 टिक करूंगा, देयर विल बी अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि ए और बी को ज्वाइन कर देगी, ठीक है। चलो सिंस आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, नॉट कहां पे ड्रॉ होगा? नॉट कहां पे ड्रॉ होगा? ए पे। जबरदस्त, ए पे। मैं स्टेप 2 चेक कर रहा हूं। चलो ए पे नॉट ड्रॉ हो गया। अब आई हैव टू फाइंड अ पॉइंट, यहां पे आ गया, और मुझे कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव करूंगा, यहां तक आऊंगा, और दिस विल बी माय रिक्वायर्ड बेयरिंग। जल्दी से मुझे एक रफ सी वैल्यू बता दो, ये कितना होगा एंगल? कितना होगा एंगल? मैं टिक कर रहा हूं जल्दी से। क्या होगा एंगल? 45, 230, 230 ये पुराना वाला आ रहा होगा। 45। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। 61, ठीक है। तो दिस इज माय बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, एंड 241 वाज द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो आई होप ये थोड़ा सा समझ में आई होंगी चीजें, कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द वर्ड फ्रॉम, नॉट ड्रॉ करो, एंड देन मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉट। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, समटाइम्स आपकी कॉपीज में कहीं भी और तुम लोग को जो है ना वो ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ए टू बी। देखो यू कैन सी एट द टॉप द बेयरिंग ऑफ ए टू बी, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, ए टू बी मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड यू हैव टू गो टू बी। ये फ्रॉम का उल्टा है। तो मैं ये दोनों चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये भी कभी कभार किसी मटेरियल में यू कैन फाइंड इट आल्सो, द बेयरिंग ऑफ ए टू बी, ठीक है। मैं बिल्कुल बताता हूँ रिजल्ट सॉल्व कैसे करना, हम एग्जांपल करेंगे बिल्कुल। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा बेयरिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। So this is bearing of A to B, means I have to draw the north at A and I have to move to B. अब देखो डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। तो अब मैं इसको आगे बढ़ा के I can show you the bearing. This is the bearing, ठीक है। और मुझे सिर्फ ये बताना है कि the maximum bearing is 360. There cannot be bearing, the value of bearing cannot be more than 360. Maximum जो value है bearing की वो 360 तक जाती है, क्योंकि it forms a complete point, angle at a point हो जाता है। तो 360 is the maximum value of the bearing, ठीक है, and it is always in clockwise direction, ये हमेशा clockwise direction में होती है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि कभी कभार तुम्हें बेयरिंग ऐसे भी मिल सकती है ए टू बी, हमेशा फ्रॉम नहीं होता। हमारे पास कोशिश ये है कि हम लोग फ्रॉम यूज करते हैं, आपकी वर्कबुक में भी फ्रॉम ही है, लेकिन कभी कभार ये भी यूज हो जाता है ए टू बी। तो मैं इसको बता रहा था कि ए टू बी का मतलब सिंपल सा है, जैसा होता है यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड यू विल गो टू बी, मतलब नॉट अब ए पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए था, क्योंकि समटाइम्स यू विल फाइंड इट ऑन द इंटरनेट पे ये चीज मिलती है, ए टू बी भी मिलती है, तो इसके लिए ये चीज याद रखना है। फॉर्म कर रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही है। चलो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि लेट्स जस्ट मूव ऑन सम प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर मैं तुम लोग को आई विल शेयर दिस लिंक ऑन द चैट, और फिर तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करना। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हाउ टू फाइंड बेयरिंग की वैल्यू कैसे निकालनी, ठीक है। तो I hope the screen is clear. इस स्क्रीन पे आओ सबसे पहले, ठीक है। This is a practice question, and since this is a software, so it will give us the question answer directly दे देगा ये, ठीक है। चलो अब तुम लोग मुझे बताते रहोगे, फिर मैं तुम लोग से पूछूंगा। Our question is we have to find the bearing of B from A. We have to find the bearing of B from A. Since I have 2 points B and A, so I draw 2 points. मैंने A और B अपने कोई भी डॉट लगा लिए, कहीं भी डॉट लगा लिए मैंने, ठीक है। A to B, हाँ ए नॉर्थ होगा, जब ए टू बी करोगे तो ए नॉर्थ होगा, सही है। अब इधर आ जाओ, अब आगे वाले पे आ जाओ, अब आगे वाले पे आ जाओ। तो बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है। सिंस दिस इज फ्रॉम, और हमें फ्रॉम के बाद लिखा है ए, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है? सो व्हाट डू यू थिंक, नॉर्थ कहां बनेगा? ए पे बनेगा या बी पे बनेगा? ए पे बनेगा, बिल्कुल ए पे बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्लिक कर देता हूं, मूव कंपास टू ए, ठीक है। तो सिंस आई हैव टू ड्रॉ माय नॉर्थ ऑन ए, सो आई विल मूव द कंपास टू ए, ठीक है। चलो अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टू गो टू बी, मुझे बी तक जाना है, तो इन विच डायरेक्शन शुड आई गो? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं? क्लॉकवाइज में। चलो अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ठीक है। नाउ मैंने इसको पकड़ा और मैं ड्रैग कर रहा हूं।
आई एम गोइंग क्लॉकवाइज 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 और ये मेरा पॉइंट आ गया और मैं यहाँ रुक गया, ठीक है। सो मेरी बेरिंग कितनी आ गई 147, सो आई विल राइट इट ओवर हियर, यहाँ मैं लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। 147 इज माय बेरिंग। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इफ माय आंसर इज करेक्ट, यस माय आंसर इज करेक्ट, इज इट सेइंग वेल डन, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ये दिस इज द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है। एक और एग्जांपल करें, एक और एग्जांपल करें, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल, ठीक है। द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए या ए फ्रॉम बी, सिंस फ्रॉम बी सो आई विल मूव द कंपास टू बी, मैंने बी पे मूव कर दिया कंपास क्योंकि बी मुझे नॉट बी पे बनाना है। चलो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज में, तो आई विल ड्रैग दिस, इसको पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हुआ लेके जाऊंगा जहां तक मेरा पॉइंट बी ना ए ना आ जाए, ठीक है। तो मेरी बेरिंग कितनी आ गई, बेरिंग कितनी आ गई 338, मैं जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ 338 इज द बेरिंग, और जब मैं इसको एंटर करूंगा तो उसमें फिर का वेल डन, ठीक है। तो आई एम शेयरिंग दिस लिंक, मैं लिंक को शेयर कर रहा हूँ जल्दी से, इस लिंक को मैं शेयर कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन करो और मुझे बताओ कि ये समझ में आया है, ये आयो आयो। आवाज आ रही है मेरी? चलो आई एम शेयरिंग इट इन द चैट बॉक्स, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से हैव अ गो, एक ट्राई करो, मुझे बताओ जल्दी से कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, गो टू दैट लिंक एंड ट्राई अ क्वेश्चन और फिर मुझे बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से ट्राई करो। मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजा है, जल्दी से ट्राई करो। Just click on this link and try a question. एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर मुझे बताओ आंसर सही आ रहे हैं। Are you getting the concept? जल्दी से ट्राई करके बताओ मुझे, आई एम वेटिंग। 283 आंसर आ रहा है, जस्ट राइट इट ऑन द बॉक्स, ऊपर वाले बॉक्स में लिखोगे ना वो बताएगा कि आर यू डूइंग इट करेक्ट और रॉन्ग। Just write it on this box. Find the answer and write it on this box and press enter. ठीक है ठीक है ठीक है, गुड मलाइका, गुड, इट्स सेइंग वेल डन, ठीक है। जस्ट ट्राई क्वेश्चन, जस्ट ट्राई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बाद में तुम बाद में ट्राई कर लेना, मैं इस लिंक को शेयर कर दूंगा उसमें, ठीक है। मैं जो है ना वो जो मीटिंग के चैट से उसमें मैं शेयर कर दूंगा लिंक को, तुम बाद में उसको ट्राई कर लेना लैपटॉप से, कोई मसला नहीं, मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। चलो तो आज कुछ ट्राई किया है किसी ने? ठीक है ठीक है, अगर मोबाइल से नहीं हो रहा मैं इसको वो उधर शेयर कर दूंगा, जियोजेब्रा पे जाके जो है ना रिसोर्सेज में मैं शेयर कर दूंगा इसको। चलो सो लेट्स चलो अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि अब सिंस बेरिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया है और बेरिंग मार्क करनी आ गई है कि बेरिंग मार्क कैसे करनी है, नॉट का ड्रॉ करना है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। वी हैव एक हमारे पास एक कंपास बना हुआ है जिसमें नॉर्थ है, ईस्ट है, आई होप यू कैन सी दिस, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट बेरिंग, अब बेरिंग कैलकुलेट कैसे करनी है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि दिस इज दिस कंप्लीट एंगल, एक ये 4 क्वाड्रेंट्स है एंड द एंगल व्हिच इज फॉर्म बाय वन क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो दिस इज 90, this is 90, this is 90 and this is 90. If I move from here, this will be 90, 90 plus 90, this will be 180, 180 plus 90, this will be 270 and 270 plus 90, this will be 360. ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो
अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 3 लाइंस, द फर्स्ट लाइन इज OA। इसको रफ कॉपी में करो, रफ कॉपी में कर लो, कॉपी में करना चाहते हो कॉपी में कर लो, बिल्कुल कॉपी में रफ सा ड्रॉ करो जल्दी से। एंड वी हैव 3 लाइंस ओवर हियर, द फर्स्ट वन इज OA, द सेकंड वन इज OB एंड द थर्ड वन इज OC। इसमें नॉट का कोई इशू नहीं है क्योंकि द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन और नॉट बना हुआ है, ठीक है। नॉट बना इसका मतलब है नॉट बना है O पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम O, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, बेयरिंग ऑफ B from O. Then we have to find out bearing of C from O. ठीक है, we have to find 3 things. We have to find 3 things. First thing, bearing of A from O. Second thing, bearing of B from O. Third thing, bearing of C from O. 3 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। तो let's just mark the bearing first. पहले मुझे काम ये बताओ कि मुझे OA की bearing मार्क करनी है। I have to mark the bearing. नॉट पहले से ड्रॉ हुआ है, I have to go to the knot पे जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है knot पे, and then I have to go in clockwise direction। अब मैं clockwise direction में मूव कर रहा हूँ, clockwise direction में मूव करता हुआ कहां तक आऊंगा, इस लाइन तक आऊंगा। This is the bearing, this is the bearing, this is the bearing, ठीक है। Now let's just tell me what will be the value of this bearing। 3 digits में आती है bearing आदेन। Remember these 3 rules। जल्दी से मुझे बता दो what will be the value of this angle। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे। Since this complete is 90, this complete is 90 and this is 30, well done इजाज़त, ठीक है बिलाल, very good उमेश, 060, very good उमेश, ठीक है, very good, bearing of A from A, very good RH शावेज, जो भी है ये, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, now I have to find the bearing of B from O। अब मुझे ये वाली बेयरिंग चाहिए, B from O, very good सलीना, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ, I have to find the bearing of B from O। लेट्स जस्ट मार्क द, पहले मार्क करेंगे, ठीक है सफीउल्लाह, वेरी गुड। मार्क करते हैं पहले बेयरिंग, नॉट बना हुआ है, आई विल मूव क्लॉकवाइज अंटिल दिस लाइन, यहां तक। इतनी बड़ी बेयरिंग है, ठीक है, इतनी बड़ी बेयरिंग है। जल्दी से मुझे बता दो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस बेयरिंग। इस बेयरिंग की वैल्यू कितनी होगी, इस बेयरिंग की वैल्यू कितनी होगी, 109 नहीं, 180, मोर देन 180। खुद देखो यहां से यहां तक 180 है, एंड दिस एक्स्ट्रा, ये ऐड कौन करेगा, 180 में 220। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आंसर बताओ। 179, 199, ये किसने बोला 199, सलीना, वेरी गुड, 199 होगा ना, क्यों, थोड़ा ये देखो, दिस इज द बेयरिंग ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है, ये बेयरिंग हो गई फर्स्ट वन की, ये दिस इज, नाउ आई हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ, ये देखो, ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, दिस इज द बेयरिंग, ये देखो अजय, दिस इज द बेयरिंग, OB की बेयरिंग, द बेयरिंग ऑफ B फ्रॉम O विल बी दिस लाइन, देखो दिस कंप्लीट लाइन, एंड आई नो दैट द एंगल फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 180, ये स्ट्रेट लाइन एंगल 180 है, तो 180 में 19 प्लस भी तो करूंगा इन ऑर्डर टू गेट ओवर हेयर। यहां तक आने के लिए मुझे आई हैव टू ट्रेवल इट फ्रॉम हेयर, यहां से ट्रेवल करना पड़ेगा पूरा घूम के, यहां से पूरा यहां तक आऊंगा तो 180, और फिर एक्स्ट्रा कितना है 19, सो 180 प्लस 19 विल बी इक्वल टू 199। सो योर आंसर विल बी 199। आई होप इट इज क्लियर, अब समझ में आ गया होगा। चलो अब मुझे तीसरा वाला बताओ, वेरी गुड, तीसरा वाला बताओ जल्दी से, बेयरिंग ऑफ C from O बताओ जल्दी से, बेयरिंग ऑफ C from O बताओ जल्दी से, बेयरिंग ऑफ C from O क्या होगी, 71, ना मुर्तजा, यू हैव टू मूव ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ, ये हमेशा याद रखना, हमेशा नॉर्थ से जाएंगे और क्लॉकवाइज। ये देखो आई एम मार्किंग, ये देखो दिस इज द बेयरिंग ऑफ, यहां से आई हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो यहां तक तो 270 हो गया, या फिर एक और काम कर सकते हैं, दिस कंप्लीट होल एंगल इज 360, ये कंप्लीट एंगल कितना है 360, और दिस इज 32, सो 360 माइनस 32 विल बी योर बेयरिंग, दिस इज कंप्लीट 360, ये पूरा 360 नहीं है, और ये कितना है 32, तो मुझे तो यहां तक नहीं आना, मुझे यहां तक आना है, तो क्या करूंगा मैं, 360 माइनस 32 दैट विल बी इक्वल टू
328 इज योर आंसर। ये चीज समझ में आई है? बिल्कुल ऐसे ही है। बस चीज ये याद रखना कि यू हैव टू मूव फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अंटिल यू रीच दैट लाइन। थोड़ा सा ये चीज को याद रखना, थोड़ा सा ये चीज को याद रखोगे तो ये फिर इंशाल्लाह बेरिंग क्लियर है। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं क्योंकि सिंस वी हैव सम ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेरिंग के मेरे पास, मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे भी हमने किया है ना, इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मेरे पास। आई विल शेयर इट ऑन द गूगल क्लासरूम, मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा या फिर चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आ जाओ, फिर इस वाले क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखना है, वी हैव टू फाइंड द बेरिंग। हमारे पास एक बेरिंग दी हुई है। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए, बस 2 क्वेश्चन के बाद क्लास को एंड करेंगे। चलो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, वी हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस जिसमें हमारे पास देयर इज 2 पॉइंट्स O एंड A, 2 पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं। ठीक है, द नॉर्थ इज ड्रॉन ऑन O पे पहले से नॉर्थ ड्रॉ किया हुआ है। और मुझे ये बताओ कि ये जो 130 है, व्हाट डू वी कॉल दिस? इस बेरिंग का नाम क्या होगा? क्योंकि ये नॉर्थ से है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये बेरिंग है। और बेरिंग का नाम क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ। इस बेरिंग का नाम क्या होगा? बेरिंग ऑफ ए पॉइंट है, अगला पॉइंट ए है, 2 पॉइंट्स है हमारे पास O और A, तो इसका आंसर क्या होगा? बेरिंग ऑफ N फ्रॉम O, नहीं N नहीं, N तो नॉर्थ है, N तो नॉर्थ है। द सेकंड पॉइंट इज A, द सेकंड पॉइंट इज A, बिल्कुल ऐसे ही है, A फ्रॉम O, A फ्रॉम O, द बेरिंग ऑफ A फ्रॉम O, ऐसे ही है सलीम। द बेरिंग ऑफ A from O is 130. The bearing of A from O is 130. Very good. Very good. 130. We are asked to find the bearing of O from A. हमें O from A चाहिए, इसका मतलब है we have to draw a north on A. हमें एक bearing दी हुई है and we are asked to find the bearing of the next question, that is A from O. A from O हमें चाहिए। तो since चलो आगे बढ़े। This is A from O, which is 130 डिग्री, 50 डिग्रीज। एक मिनट देखते हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस आई हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ O फ्रॉम A, तो मैं नॉर्थ कहां पे ड्रॉ करूंगा? A पे। आई एम ड्रॉइंग द नॉर्थ, मैंने नॉर्थ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैंने नॉर्थ ड्रॉ कर दिया। चलो ये चीज समझ में आई, क्योंकि मुझे बेरिंग चाहिए तो मैंने नॉर्थ ड्रॉ कर दिया A पे। अब नाउ आई हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ। मैंने नॉर्थ पे आया और मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करना है पूरा। ठीक है, पहले मैं बेरिंग मार्क कर रहा हूँ। देखो पहले मैंने बेरिंग मार्क कर दी, दिस इज माय बेरिंग। मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब जरा थोड़ा सा प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा। पहले ये मुझे बताओ कि जस्ट टेल मी, इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? इज दिस अ स्ट्रेट लाइन? अगर दिस इज 130, so हाउ मच दिस एंगल विल बी? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अगर ये 130 है, इफ दिस इज 130, ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 50। वेरी गुड, 50, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। तो कैन यू सी अ जी साइन? जी दिख रहा है? ये देखो, दिस इज माय जेड, दिस इज माय जी, दिख रहा है? ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट किया, फिर मैं यूं करके आया और यूं ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। इफ दिस इज 50, तो क्या ये भी 50 नहीं होगा? तो इसका मतलब दिस बेयरिंग विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 50। कैसे? ये देखो, सर फैजान, आपने ए पे नॉर्थ क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि मुझे बेयरिंग चाहिए ए ओ फ्रॉम ए, मुझे ओ फ्रॉम ए चाहिए, मुझे बेयरिंग ओ फ्रॉम ए चाहिए, इसलिए मैंने ए पे नॉट ड्रॉ किया। एक बेयरिंग तो मुझे दी हुई थी ना, मुझे दूसरी बेयरिंग फाइंड करनी थी। ठीक है, सो दिस इज 50, सो सिंस दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो दिस विल आल्सो बी 50, ये भी 50 हो जाएगा। और फिर सिंस आई हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल, सो 360 माइनस 50 विल बी इक्वल्स टू 320। कैसे आ रहा है? 310 will be my answer. 310 will be my answer. Very good. 310 will be my answer. ठीक है, तो ये देखो पुराने कॉन्सेप्ट्स आए ना, इसीलिए मैंने बोला था कि ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है हर बार। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी देखते हैं। चलो ये रहा,
ये रहा, the question is in front of your screen, this one. The bearing of B from A is 142. The bearing of B from A is 142 degrees. ठीक है, the bearing of B from A means I have to draw my north on A, क्योंकि this is B from A. मैंने A पे नॉर्थ ड्रॉ किया और कितना एंगल दिया हुआ है 142, तो मैंने दिस एंगल को मार्क कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस वाज गिवन टू मी, दिस वाज गिवन टू मी 142 डिग्री मुझे दिया हुआ था. ठीक है, दिस वाज माय बेयरिंग. I have to find the bearing of A from B. I have to find the bearing of A from B. So since I have to find the bearing of A from B, तो मैंने क्या किया, B पे नॉट ड्रॉ किया. ठीक है, and I have to find this complete angle. ये मुझे दोबारा उसी तरह complete angle find करना है. So I know that since this is 180, अगर ये 142 है तो how much this will be? 38. ठीक है, if this is 38, this will also be 38. So the required bearing will be 360 minus 38. बिल्कुल ऐसे ही है, 360 minus 38. 142 नहीं रहता. हाँ 142 given है मुझे, 142 given था मुझे, तो देखो question में given है 142. The question is the bearing of B from A. From A मतलब I have to draw my north at A, और from B दिया है, इसका मतलब है I have to move in clockwise direction to B. So this was given to me. 322 is the right answer. ठीक है, अब जल्दी से मुझे इसका भी आंसर बताओ. चलो एक और क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, जल्दी से. बेयरिंग इज गिवन टू यू, दिस इज योर क्वेश्चन. ये रहा क्वेश्चन. अ बोट एंड अ लाइट हाउस, a boat and a lighthouse, and this is 60 degree. This is 60 degree. I want to find this angle. मुझे I want to find the bearing of boat from lighthouse. मुझे boat from वो lighthouse की वैल्यू बताओ जल्दी से. Boat from lighthouse. Since this is from lighthouse, so you will draw a knot on lighthouse and you will start moving from here till here. This will be 120. This will be 120. Bearing कितनी होगी जल्दी से, bearing कितनी होगी? Excellent. 240. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. 240 होगी बिल्कुल. ठीक है, 240 will be my bearing, क्योंकि if this is 60, so this will ये 120 हो जाएगा. This will also be 120, and then 360 minus 120 will be equals to, देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ. ये इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार. ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन एंड दीज वर, ये दो दिए हुए थे. ठीक है, ऐसी था, ये एक नॉट था. ठीक है, दिस वाज माय नॉट, दिस वाज द बोट, मैं इसको बी लिख रहा हूँ, एंड दिस वाज द लाइट हाउस, इसको एल लिख रहा हूँ. दिस वाज द एंगल व्हिच इज गिवन टू मी एज 60. ठीक है, एंड आई वाज आस्क्ड टू फाइंड दिस एंगल. मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, ऐसे ही था. आई हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोट फ्रॉम लाइट हाउस. So I draw the knot on lighthouse, and then I start moving in clockwise direction until I reach the point. So I have to find the value of this. What will I do? I will extend this line. If this complete angle is 180, this is a straight line. So this complete angle will be 180. If this is 60, so this will be equal to 120. This will be equal to 120. Since alternate angles, these two are alternate angles. If this is 120, this will also be equals to 120, because these two are alternate angles. And since I have to find this angle, so I know that complete angle is 360. So what will I do? I will subtract 120 from 360. 360 minus 120, and it will give me an answer of 240. Since they are in 3 digits, so मुझे 0 लगाने की जरूरत नहीं है. So 240 degrees is the bearing. बेयरिंग D3 का टॉपिक है. बेयरिंग के क्वेश्चन D3 में, इसलिए मैं थोड़ा सा शेयर कर दूंगा. ठीक है, थोड़ी सी चीजें समझ में आई है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको समझाना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन कर ले, उसके बाद फिनिश करते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन कर ले. आर वी अलाउड टू डू अ लास्ट क्वेश्चन? एक आखिरी क्वेश्चन कर सकते हैं? चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं. इसी तरह का है, तुम लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे आंसर बताना जल्दी से. चलो, दिस इज योर क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है. हाँ, सप्लीमेंटल वर्कबुक में है डी.
सप्लीमेंटल वर्कबुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बस, ये कर लो फिर खत्म। चलो मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। चलिए योर लास्ट क्वेश्चन, you have 2 points A and B, you have 2 points A and B, and the bearing of B from A is 080. The bearing of B from A is 080 and 080, and you have to find the bearing of A from B. A from B bearing चाहिए मुझे, ठीक है। First of all I will make a line, पहले मैंने since I have to find from A, मुझे bearing given है तो मैंने सबसे पहले नॉट बनाया A पे और मैंने फिर एक बेयरिंग मार्क कर दी, दैट इज इक्वल टू 080, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन थी बेयरिंग। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। जल्दी से मुझे इस एंगल की वैल्यू बता दो, जल्दी से मुझे इस एंगल की वैल्यू बता दो। यू हैव टू फाइंड द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम B. A फ्रॉम B मींस यू हैव टू ड्रॉ योर नॉट ऑन B एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है। 360 इज अ टोटल एंगल, इफ दिस इज 80 ये कितना होगा, 360 माइनस 80, हाँ, इफ दिस इज 80 ये कितना होगा फिर 100। 100 बिल्कुल, और फिर 360 माइनस 100 कितना हो जाएगा 260। भाई चीज समझ में आ गई, 260। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। आई होप थोड़ा सा तो समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया तो फिर बाकी इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। So that was all about bearing. That was all about bearing. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। bearing special kinds of angles हैं, 3 rules for that. We have to measure it from knot. Knot से measure करते हैं हर बार। It is in supplementary workbook, ठीक है मुर्तजा। knot से measure करते हैं। knot से measure करने का मतलब है कि we have to draw a knot on some point. कैसे पता चलेगा, from के word से पता चलेगा। Then we have to move in clockwise direction और we always write bearing in 3 digits, हमेशा 3 digits